الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں کوشچن نمبر 8 کرنا ہے، تمرین نمبر 8۔ تمرین نمبر 8 جو ہے آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے کہ ایک اسم یا تو رفعی حالت میں ہوتا ہے یا نصبی حالت میں ہوتا ہے یا جری حالت میں ہوتا ہے، یعنی یا تو اس کے آخر پر پیش ہوگا یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی۔ لیکن جب ہم اس اسم کو اسم نکرہ کی صورت میں لکھتے ہیں، نہ الف لام اس کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ یہ مضاف ہوتا ہے وغیرہ، تو اس کے اوپر دو پیش دو زبر دو زیر آتی ہیں، جیسے یہاں ہے جہاں پہ کرسر ہے آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، بیتن، دو پیش کے ساتھ بیتن۔ یہی ورڈ، یہی اسم بیتن جب ہم بطور مضاف استعمال کریں گے کسی اسم کی طرف یا کسی ضمیر کی طرف تو ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کا ایک پیج ختم ہو جائے گا تو یہ بنتا ہے بائی تو کا، بائی تو کا، بائی تو کا۔ اسی طرح بائی تو ہو، اس ایک مرد کا گھر، بائی تو ہا، بائی تو ہا، اس ایک عورت کا گھر، بیتی، میرا گھر۔ مرد بھی کہہ سکتا ہے بیتی اور عورت بھی کہہ سکتی ہے بیتی، میرا گھر۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی اسم یا یہ متکلم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، یا یہ متکلم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس کے نیچے زیر آتی ہے، چاہے وہ جس جگہ جملے میں استعمال ہو جائے، اس جگہ پیش والی جگہ پہ ہو، زبر والی جگہ پر ہو یا زیر والی جگہ، تو اس کے نیچے زیر آتی ہے، بیتی بیتی ہی رہے گا۔ اسی طرح قلمی، کتابی، ولدی، ابنی، امی، ابی وغیرہ وغیرہ آپ یہ دیکھیں گے۔ یہ تو ہو گیا کہ ایک نارمل اسم، لیکن اسموں کی اس قسم میں، اسموں کی اس کلیکشن میں دو چار اسم ایسے ہیں جن کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ 5 اسم ہیں، فی الحال ہم ان میں سے 2 پڑھتے ہیں۔ ایک ہے ابن یعنی فادر، دوسرا ہے اخن یعنی بردر، دوسرا ہے اخن یعنی بردر۔ جب ہم ان کو بطور مضاف استعمال کریں گے، بطور مضاف استعمال کریں گے، آپ نے پیچھے بھی دیکھا، چاہے کسی اسم کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف ہو، یا آج جو پڑھ رہے ہیں کسی ضمیر کی طرف، تو ان کے ساتھ ایک واو لگ جاتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیے ابن مینز فادر، لیکن جب اس کو کا کی طرف مضاف استعمال کیا گیا تو اس میں واو ایڈ کیا گیا، ابو کا، نہ کہ صرف ابو کا، ابو کا نہیں، ابو کا، کیا، ابو کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے خلیفہ راشد کا نام ہے ابو بکر، نہ کہ ابو بکر۔ آپ نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے ابو بکر، وہ کہے گا ابو بکر، واو کے ساتھ پڑھے گا اس کو۔ سیم از دا کیس ود اخن، اخو کا، نہ کہ اخو کا۔ یہی اگر آپ کسی اسم کی طرف ان کو مضاف کر کے استعمال کریں گے، جیسے میں کہوں گا حامد کا باغ،
तो मैं कहूंगा अरबिक में अबू हामिदिन, अबू हामिदिन। या हम कहेंगे ज़ैनब का बाप, अबू ज़ैनब, अबू खालिद, तो वाव इसके साथ आएगा, लग जाएगा। आप यहाँ देखिए, अबू का, अबू हो, अबू हा, लेकिन जब ये मुतकल्लिम की तरफ हो तो सिर्फ अभी रहेगा, वाव ड्रॉप हो जाएगा। अभी, बाकी नीचे जेर आ गई, जैसे यहाँ बैती, इसके नीचे जेर आ गई थी ता के नीचे। इसी तरह अभी अखी, अखुन के साथ भी मामला है। अखुन, अखूक आपका भाई, आप एक मर्द का भाई, अखूक हो उस एक मर्द का भाई, अखूहा उस एक औरत का भाई, अखी, अखी, वाव ड्रॉप हो गया फिर से। ये अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू, ये 5 इस्म ऐसे हैं जिनके साथ ये मामला होता है। जब इनको रफा की हालत में इस्तेमाल करना होता है, यानी मरफू हालत में, जहां उनको उनके ऊपर पेश आ जाना चाहिए, तो हम इनके साथ वाव ऐड करते हैं। और जब जबर वाली हालत हो तो अलिफ ऐड करते हैं, जब जेर वाली हालत हो तो या ऐड करते हैं। यानी अबू का, कभी आप देखेंगे किसी किताब पर या किसी जगह वहां होगा अबा का, कहीं आप देखेंगे अबी का। वो क्या मसला है वो मैं इंशाल्लाह आगे सिखाऊंगा, आगे आ रहा है, वहां हम सीखेंगे इसको। फिलहाल आप इन दो इसम को याद रखें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, अबुन और अखुन। इनको इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप इनको वाव के साथ इस्तेमाल करेंगे रफा की हालत में, एक्सेप्ट दिस, या ये मुतकल्लिम के बगैर। बात क्लियर हो गई? जी जी, हाँ, बात क्लियर हो गई ना। लेकिन बैतुन, कलमुन, किताबुन, वलदुन, इनके साथ ये मसला नहीं है। इनके साथ ये मसला, जब आप इनको बतौर मुजाफ इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ अगर ये 2 पेश वाले थे या 2 जबर वाले थे या 2 जेर, तो उनकी एक जबर जेर एक पेश खत्म होकर उसके साथ मुजाफ इलैहि बढ़ा दीजिए, क्या होगा, मसला खत्म हो गया। बात क्लियर हो गई? सर 5 आपने क्या बोले? अबुन, अखुन, हमुन, हा मीम, हमुन, हमुन है तीसरा, फमुन, फा मीम, फा मीम, फमुन, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन, जू, 5 बार, जू, जाल वाव, जाल व जू, हाँ, जो हमने पीछे पढ़ा भी, जू मालिन, माल वाला। इनका कायदा थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं इंशाल्लाह आगे जाकर हम उस वक्त वहां पहुंचेंगे तो वहां हम इसका इंशाल्लाह उसको रिपीट करेंगे और ठीक तरह से पढ़ाएंगे। यहाँ एक पॉइंट ये है कि किसी इसम के साथ ये मामला नहीं है, जब इसको मुजाफ इस्तेमाल किया जाए तो उसमें एक वाव ऐड कर दिया जाएगा या अलिफ नहीं, इसमें तो सिर्फ इन 5 इसमों में। इसको अरबिक में पढ़ते भी है इसे अल अस्मा वल खमसतु, 5 इसम, अल अस्मा ओ अल खमसतु, 5 इसम, वो आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आप देखिए इसकी और तमरीनात देखिए। नंबर 1, अबी व उम्मी फिल बैत, अबी व उम्मी फिल बैत। यहाँ चूंकि अबी और उम्मी दोनों याई मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है, तो इनके साथ ना वाव बढ़ाया गया ना और कुछ, सिंपली जेर लगा दी गई इसके नीचे, हालांकि ये पेश वाली जगह पे है। अबी व उम्मी, माई फादर एंड माई मदर, और at home, fil bait, or at home. Number 2, aina abuka. सर 1 मिनट, फिल बाई नहीं पढ़ सकते, फिल बाई
हाँ हाँ फील बाइती, हाँ क्यों नहीं, क्या रहना? हाँ हर्फ जर फील बाइती ही, लेकिन जब हमें रुकना होता है, वाकफ करना होता है, तो हम जनरली लास्ट पे सुकून पढ़ते हैं, जनरली लास्ट पे क्या पढ़ते हैं, सुकून पढ़ते हैं। आपने वो देखा, कुरान में देखा होगा, आयतों के आखिर में हम आयत के आखिरी हरफ के आयत के आखिरी कलमे के आखिरी हरफ के नीचे या ऊपर जो जबर या जेर होती है उसको नहीं पढ़ते हैं, रुकते हैं वहां। इस तरह अरबिक में ही जब आप सेंटेंस खत्म करेंगे तो आप उस वक्त सुकून कर, उसको जेर जबर नहीं पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब इस अगर पे मानियस पे फर्क की हज। आप कौन बात कर रहे हैं? सर मैं डूरू से हूँ। अच्छा, अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ, हाँ अहलन व सहलन। आज ही मैंने ज्वाइन किया है ना। अच्छा आपने आज ही ज्वाइन किया है, चलिए थोड़ा माशाअल्लाह, मुझे वेलकम टू यू इन दिस क्लास। थैंक यू सर। सवाल बताइए क्या है? मेरा सवाल है इससे मानी पे इसका फर्क पड़ता है अगर हम ती पढ़ेंगे या बाईत पढ़ेंगे? नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा वही। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। चलिए सर, आईना, अब दूसरा देखिए, आईना अबू का, आईना अबू का, वेयर इज योर फादर, अबू का, या हामिदो, हामिद आपके वालिद साहब कहाँ है? अबू का वाव इसमें ऐड कर दिया गया, आईना अबू का। जवाब मिला ज़हाबा इला सूक, वो बाजार गया, he went to the market, ज़हाबा इला सूक, वो he went to the market, वो बाजार चला गया। शाबाश। नंबर 3, अअखूका तबीबुन, अअखूका तबीबुन, अअखूका तबीबुन। हेलो, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? जी सर। इसमें कुछ आप सारे बाकी सारे लोग म्यूट पे रहिए। कहीं पे दो मोबाइल सामने सामने रखे हैं। हाँ इसलिए आवाज डबल आ रही है। चलिए अब तो हो गया ठीक मेरे ख्याल से। हाँ, अअखूका तबीबुन, इज योर फादर ए डॉक्टर? अअखूका, अअखूका, अखूका वाव ऐड हो गया, अअखूका तबीबुन, क्या आपके भाई डॉक्टर हैं? ला नहीं, हुआ मुदर्रिसन, वो एक टीचर हैं। नंबर 4, ज़ैनबो फिर रियाज, ज़ैनब रियाज में है। अखूहा उसका भाई, अखूहा वाव के साथ लिखा गया, अखूहा उसका भाई, फिर ताइफ ताइफ में है। व अबूहा और उसका बाप, और उसका बाप फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में है। अखूहा अबूहा दोनों आ गए। नंबर 5, हाज़त तालिबु, हाज़त, हाज़त तालिबु, हाज़त तालिबु, ये स्टूडेंट। अबू हो इसके वालिद साहब, वजीरुन वजीर हैं, मिनिस्टर हैं। वाखू हो और उसके भाई, ताजिरुन कबीरुन, एक बड़े ताजिर, एक बड़े ताजिर है। नंबर 6, ज़हबा अखी, अब आखिर पे इसने एक और लाया, अखी, ज़हबा अखी मेरे भाई, इलल मदरसती मदरसा गए, वज़हबा अबी इलल जामिअती और मेरे वालिद साहब यूनिवर्सिटी, और मेरे वालिद साहब यूनिवर्सिटी। हाँ अब यहाँ अखी और अबी को देखिए जरा, कोई वाव ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है। क्लियर हो गए ना? यानी जब अबुन और अकुन, फिलहाल हम ये दो इसम ले लेंगे, जब ये किसी भी इसम या ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन की तरफ मुजाफ होकर इस्तेमाल हो जाएंगे तो आप इनको इनके साथ एक वाव ऐड कर देंगे, अबू का या अबू खालिद, अखू हो या अखू ज़ैनब, इनमें एक वाव ऐड कर देंगे। अलिफ कहाँ ऐड करेंगे और या कहाँ ऐड करेंगे वो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब ये याई मुतकल्लिम की तरफ होंगे मुजाफ तो इनके साथ कोई
और हर्फ ऐड नहीं होगा, सिंपली पढ़ना होगा अखी, अभी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कहता है कि कुछ आसमा इसने दिए हैं, अरबी जबान में जो मर्दों के नाम हैं वो लिखे हैं इसने, लेकिन 2 कैटेगरीज में लिखे हैं। ऊपर की कैटेगरी, ऊपर लाइन में मुहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, अब्बासुन, महमूदुन, 5 नाम है जो सिंपल है, आप जानती भी हैं इन्हें। लेकिन दूसरी लाइन में है हमज़तु, तलहतु, उसामतु, मुआवियतु, इक्रिमतु। इक्रिमा ऊपर जो नाम इसने लिखे, या मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा क्या आपको लग रहा है कि इन 2 कैटेगरीज में कोई फर्क है? गोलता की फर्क। हाँ, गोलता की फर्क है। ऊपर वाले जो है उनमें गोलता नहीं है और नीचे जो है उनमें सब में गोलता है। तो इसकी वजह से कौन सी डिफरेंस हो गई, कौन सी मतलब जो है इन दोनों में क्या मतलब ये हो गया जो जिसने इनको अलग अलग कर दिया, या जिसका हमें पढ़ते वक्त ख्याल रखना है? मुज़क्कर मुअन्नस की। मुज़क्कर मुअन्नस की। कौन सा मुज़क्कर है? गोलता के मुहम्मदुन। हाँ, गोलता के बगैर जो है वो मुज़क्कर है, और जो ये है गोलता के साथ ये मुअन्नस है ना जी। शाबाश। लेकिन हमजा किस औरत का नाम है आपके गांव में, मुझे बताएं। उसामा किसी औरत का नाम है क्या? मुआविया किसी औरत का नाम है क्या? जी नहीं। फिर क्यों हम कहेंगे ये मुअन्नस है? ये जो अरबिक लोग नाम रखते हैं उनके हिसाब से कुछ नाम मुज़क्कर में आते हैं, लेकिन जनरल रूल यही है ता मरबूता जब आता है मुअन्नस है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर कहा तो मैं इसको जरा इस तरह कहूंगा कि अरबिक में जो असल में ये गोलता जो है जो आप यहाँ देख रहे हैं ये अलामत तानीस है, मुअन्नस की अलामत है। यानी जिस भी इसम के पीछे ये गोलता होगी उसको हम मुअन्नस मानेंगे, चाहे वो मुअन्नस अब सिर्फ लफ्जी तौर ही क्यों ना हो। यानी माना तो इस वर्ड का मुज़क्कर ही होगा, जैसे हमजा है, तला है, ये तो मुज़क्कर नाम है, लेकिन लफ्जी तौर इनको मुअन्नस ही मानेंगे। लफ्जी तौर इनको क्या मानेंगे? मुअन्नस। अब अगर फॉर एग्जांपल फातिमा होगा, खदीजा होगा, इस तरह के कोई नाम होंगे तो उनको हम लफ्जी तौर भी मुअन्नस और माने के एतबार से भी मुअन्नस ही मानते हैं। और जो ये लफ्जी तौर ये मुअन्नस हैं हमजा, तलहा, उनके साथ वही कायदा लगेगा जो आपने पीछे पढ़ा था जब मैंने आपको मुज़क्कर के नाम अलग और मुअन्नस के नाम अलग पढ़ कर दिखाए थे। तो मैंने बताया था उस वक्त कि ये मुअन्नस के नाम जो है ये 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर यानी तनवीन कबूल नहीं करते हैं। इसी तरह ये भी, हाँ इसी तरह ये नाम भी, ये नाम जो मुज़क्कर नाम है लेकिन इनके आखिर में गोलता है, इनके आखिर में गोलता है, ये भी तनवीन कबूल नहीं करेंगे। जैसे ऊपर है वो यहाँ देखिए आप, मुहम्मदुन 2 पेश के साथ, लेकिन हमज़तु, खालिदुन लेकिन तलहतु, हामिदुन, उसामतु, अब्बासुन, मुआवियतु, महमूदुन, इक्रिमतु। इक्रिमा तो इनको आप सिर्फ एक पेश से पढ़ते हैं, एक पेश के साथ पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। जी। जरा आप नीचे पढ़िए, ये कह रहा है आपको इक़रा अल अस्मा अल आतिया, इन अस्मा को पढ़िए, वज़बित अवाखिरहा, इनके आखिर को जब्त करते हुए, यानी आप ये देखिए किसके ऊपर 2 पेश लगेंगे, किसके ऊपर एक ही पेश लगेगा। जरा पढ़िए एक एक करके। पहला क्या है? खालिदुन, शाबाश। हमज़तु, हमज़तु, शाबाश। अम्मारुन, अनसुन, नून के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर, अनसुन, अनसुन, हाँ। मुआवियतु, मुआवियतु, बहुत अच्छा। हामिदुन, शाबाश। उसामतु, उसामतु, शाबाश।
इक्रिमतु, बहुत अच्छा, अब्बासुन, मुहम्मदुन, शाबाश, तलहतु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने ये देखा, हालांकि ये सारे नाम मुज़क्कर के नाम है, इनमें से कोई नाम मुअन्नस नहीं है, लेकिन पढ़ने के एतबार देखिए कितनी फर्क है। जो गोलता के बगैर है उसको हम दो पेश के साथ पढ़ते हैं, और जो गोलता के बगैर है, ये सॉरी गोलता के साथ है, उसको हम हमजा के एक ही पेश से पढ़ते हैं, एक ही पेश। जो गोलता के बगैर है उसको हम दो पेश के साथ पढ़ते हैं। शाबाश। अब इस लेसन में आपने कुछ नए कलिमात पढ़े, जरा इनकी माने मुझे बताइए। अज़मील, साथी, शाबाश। अज़मील कुलीग, साथी, क्लासमेट वगैरह। अज़्ज़ौज, शौहर, हस्बैंड, शाबाश। वाहिदुन, एक। फतन, जवान, नौजवान। नौजवान क्या, मर्द या औरत? मर्द, शाबाश। मअ, साथ, विद, शाबाश। अत्तिफ्ल, बच्चा। अल-कुवैत, कुवैत, शाबाश। कुवैत इन्हें मुल्क का नाम है। अल-लुगतु, लैंग्वेज, शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये लेसन नंबर 10 था जो कंप्लीट हो गया। अब लेसन नंबर 11 है। देखिए, सिर्फ 10 लेसन पढ़कर अगर मैं आपको ये कह दूं जरा अपने घर के बारे में लिखिए, तो आप कहेंगे अभी हमने क्या पढ़ा है जो हम अपने घर के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन इसने आपको लेसन नंबर 11 में ये सिखाया कि देखिए आप अपने घर में छोटे छोटे जुमले कैसे लिख सकते हैं। छोटे छोटे जुमले, छोटी छोटी, मतलब बहुत कम चीजें जो है, मतलब ये जो ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, सारी चीजें आपने पढ़ी है, इनको आप कैसे लिख सकते हैं। एक कुछ ये लेसन नंबर 11 है, इसका नाम है बाईती, मेरा घर। इसके बारे में देखिए कैसे कहेगा ये। बाईती मीन्स मेरा घर, शाबाश। हाजा बाईती, शाबाश। बिलाल मलिक साहब से शुरू करेंगे। बाकी लोग ये करें, आप इसको म्यूट करें ताकि आवाज साफ आ जाए। हाजा बाईती अमामुल मस्जिद। एक मिनट। हाजा बाईती माने क्या है? ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, शाबाश। फिर क्या है? बाईती अमामुल मस्जिद। अमामो क्यों पढ़ा आपने? अमामुल, ये ज़र्फ है ना, ज़र्फ़ी मकान है, ज़र्फ़ी एडवर्ब ऑफ प्लेस, ज़र्फ़ी मकान है। तो ज़र्फ जो भी होते हैं उनको हम ज़बर के साथ पढ़ते हैं। अमा बैती अमामल मस्जिदी, बहुत अच्छा, यानी मेरा घर मस्जिद के सामने है, मस्जिद के सामने है, शाबाश। नंबर 3, आगे बढ़ो। बैती जमीलुन, बैती जमीलुन, शाबाश। मेरा घर खूबसूरत है, मेरा घर खूबसूरत है, शाबाश। आगे। फीही हदीक़तुन सगीरतुन, शाबाश। ये हदीक़तुन सगीर मीन्स सगीरतुन छोटा बाग है। छोटा बाग, बाग यहाँ मुराद है, चूंकि हम जब उर्दू में बाग कहते हैं तो उसकी मुराद अलग होती है। छोटा बाग यहाँ मुराद है, फीही उसमें हदीक़तुन सगीरतुन, एक छोटा लॉन है, छोटी सी पार्क है। हाँ, छोटी सी पार्क है मेरे घर के में, इसमें सामने, शाबाश। हाज़िही गुरफती, मेरा कमरा है, मस्जिदतुन कबीरतुन और मिरवतुन जमीलतुन, शाबाश। ये मेरा कमरा है, इसमें और खूबसूरत मिरर है। इसमें एक बड़ी खिड़की है, नाफिज़ में खिड़की, और एक खूबसूरत पंखा है। पंखा मेरे वातुन मीन्स पंखा, एक खूबसूरत पंखा है, शाबाश। आप चुप करें। अब हम क्या नाम है, वसीम रहमान से
वसीम रहमान आप शुरू करेंगे। वसीम रहमान आप पढ़े यहाँ से। हादा, हाजा सरीरी, ये मेरा बेड है। बहुत अच्छा। वहाजा कुर्सी, ये मेरी कुर्सी है। नहीं वहाजा मकतबी, इसको फिर से पढ़िए। हाजा कुर्सियों, वहाजा कुर्सियुन, कुर्सी मीन्स और चेयर। ये कुर्सी है, चेयर। नहीं, फिर से देखो क्या है, ये 2 या बल्कि 3 या है। रस्सी, कुर्सी, मेरी कुर्सी है। हाँ, बहुत अच्छा। कुर्सी, ये मेरी चेयर है। कुर्सी मीन्स चेयर, कुर्सी मेरी चेयर। शाबाश। वहाजा मकतबी, और ये मेरी टेबल है। हाँ बिल्कुल, मेरा टेबल है। साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी, मेरी घड़ी, मेरा कलम और मेरी किताब टेबल पर है। बहुत अच्छा। व हकीबती तहतल मकतबी, और मेरा बैग इस टेबल के नीचे है, इस शाबाश। टिपाई के नीचे। नाफिज़तु गुरफती मफ्तूहतुन, मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। बस करें आप। शाबाश, बहुत अच्छा। अब बुरहान मलिक से आप पढ़ें। बुरहान मलिक, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। पढ़ें आप। हाज़तुन गुरफतु अखी, ना, फिर से देखो। हाज़िही हादिही, गुरफतु अखी, शाबाश। मेरे भाई की खिड़की। नहीं, शाबाश शाबाश, कोशिश करो। हाजिही मीन्स ये, हाजी मीन्स ये, गुरफत, गुरफतु मीन्स कमरा, कमरा, अखी मीन्स भाई, मेरा भाई। सो मेरा भाई, माने हो गया ये मेरे भाई भाई का कमरा है। कमरा है। शाबाश। वाह। व तिलका गुरफतु अखी उक्ती, उख्ती, और वो कमरा मेरी बहन का है। शाबाश, मेरी बहन का है। शाबाश। गुरफतु अखी कबीरतुन व गुरफतुन उक्ती सगीरतुन, शाबाश। मेरी बहन का, मेरे भाई का कमरा बड़ा है और मेरी बहन का कमरा छोटा है। बहुत अच्छा। गुरफतुन अखी अमामा गुरफती, शाबाश। व गुरफतुन व गुरफतु उक्ती, गुरफतु अक्ती अमामल मुतबख, मतबख। शाबाश। यानी मेरे भाई का कमरा पास, मेरे कमरे के सामने है। अमामा मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ, मेरे कमरे के सामने है। शाबाश, सामने है। और मेरी बहन का कमरा अमामल मतबखी, किचन के सामने है। बहुत अच्छा। चलिए अब हम प्रोफेसर साहब से गुजारिश करेंगे, आप पढ़ें। जी। ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। इस्मुहु उसामा, और उसका नाम उसामा है। यहाँ पे एक ही पेश आ गया है ना। अगर हामिद होता तो ये क्या था, इस्मुहु हामिदुन। हाँ, तो यहाँ देखिए इसने गोलता लिखी तो यहाँ लिखा इस्मुहु उसामतु। शाबाश। वली उख्तुन वाहिदा, और मेरी एक बहन है। इस्मुहा सुआद, और उसका नाम सुआद है। सुआद है। शाबाश। सुआद के ऊपर भी जरा गौर कीजिए। सुआद मोनस इसम है। सुआद मोनस इसम है, हकीकी मोनस जिसको हम कहेंगे। ये लड़की का नाम है, लिहाजा चाहे गोलता हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर एक ही पेश, एक ही जबर, एक ही जेर आएगी। ठीक है, जेर तो नहीं आएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आप आगे बढ़िए। अभी व उम्मी फी तिलकल गुरफतुल कबीरा, फी तिलकल गुरफा, फी तिलकल गुरफा, फी तिलकल गुरफा, गुरफतुल कबीरा।
शाबाश, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या फी तिलकल गुरफतो आएगा या फी तिलकल गुरफते? गुरफत आए है निजार निजार फी गुरफत फी गुरफत तिलकल फी, कबीरतु। शाबाश, फी जब आ गया तो उसके बाद इसमी इशारा और मुशार इलैह, गुरफत मुशार की तरकीब जब होगी तो मुशार इलैह के नीचे जी जेर आएगी, फी तिलकल जी गुरफते। शाबाश। गुरफतिल कबीरा कबीरती कबीरत यता, कबियतो, कबीरते कबीरतु कबीरा कबी कबीरते हाँ कबीरत, सिफत है कबीरतु ना, ये सिफत है। जब मौसूफ के नीचे जेर आ गई तो सिफत के नीचे भी जेर आएगी। फी तिलकल जी गुरफती अल कबीरती, उस जी जी बड़े कमरे में, यानी मेरे फादर और जी मेरी माँ उस बड़े कमरे में है। है जी शाबाश, आगे बढ़े। अना अना उहिब्बु अबी व अम्मी, हम उम्मी, अपने बाप और माँ को प्यार करते हैं। बहुत अच्छा। यहाँ याद रखिए, अभी के से पहले जो हमजा है और उम्मी से पहले जो हमजा है, अभी से पहले इसके ऊपर जबर आती है, लेकिन जब उम्मी से उम्मी के का हमजा जो है इसके ऊपर पेश आता है, अभी और उम्मी। व उम्मी हाँ, आगे बढ़िए। व अहब्ब अखी व व उहिब, उख्ती, उहिब जैसे यहाँ है उहिब, उहिब, और मैं पसंद करता हूँ अखी व उख्ती, अपने भाई और अपनी। अपने भाई और अपनी बहन को। बहुत अच्छा, यहाँ पे हमारा टाइम भी खत्म हो गया इसका, तो 2 मिनट क्या 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह नया सेशन शुरू होगा, नया क्लास शुरू होगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हर उसे